So once again, very good evening to all the students and all my dear students and all my team members. I welcome you in the continuing lecture of numerical problems on center of mass, collisions and law of conservation of linear momentum. So today also we will learn the various application of the concept which we studied till now. So one by one we will study different numerical and we will know the concept behind the problem. Okay, so be ready, be focused, write down first problem. Write down, write down half of the rectangular plot, half of the half of the rectangular plate, half of the rectangular plate as shown in figure, as shown in figure, as shown in figure, the stop is made up of material, is made up of, is made up of material of density, material of density रो वन लिखा, आगे लिखिए एंड अदर हाफ, एंड द अदर हाफ, अदर हाफ ऑफ डेंसिटी, ऑफ डेंसिटी रो टू. Clear? So there are two half. One is made up of material of density rho 1, another is made up of density rho 2. First stop. The length of the plate is L. The length of the plate, the length of the plate is L. Let's stop. Locate the center of mass of the plate. Locate the center of mass of the plate. So please try. I am giving you the figure. Let's draw. ये प्लेट है, इसकी लेंथ क्या है L. There are two half. One half is made up of material of density. एक हाफ में क्या है, डिफरेंट मटेरियल है, और सेकंड हाफ में क्या है, एक और मटेरियल है आपका. क्लियर? This half is made up of material of density rho 1. This half is made up of material of density rho 2, and the length of the plate is L. This is the flat plate. This is the plate. ठीक है, समझा गया? So please tell me the approach. ये मैंने कंसेप्ट आपको पढ़ा दिया है. अगर किसी ने लेक्चर नहीं देखा, प्लीज वॉच द लेक्चर and try to understand and imagine how to solve such problem. This is very easy problem, but you should know how to approach. Clear? So write down and try by your own. Let's try. You can see in this problem, this is problem क्या कह रही है, half of the rectangular plate is as shown in figure is made up of material of density rho 1, another half is made up of density rho 2. The length of the plate is L. Locate the center of mass of plate. देखिए अब इस प्लेट का सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है, तो देखिए दो ये क्या है, ये डिफरेंट मटेरियल है, ये डिफरेंट मटेरियल है. मैंने आपको ये बताया था, कोई बड़ी ऑब्जेक्ट हो, कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट हो और वो डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बना है,
किसी में n1 पार्टिकल्स हैं, किसी में n2 पार्टिकल्स है, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे। नाउ अंडरस्टैंड, मैंने आपको ये बताया था इन दैट कंडीशन हाउ टू अप्रोच सच प्रॉब्लम। मैंने आपको डेरिवेशन भी कराया। कुछ नहीं करना, आपको इस पूरी की पूरी प्लेट का सेंटर ऑफ मास निकालना है ना, तो इसको डिवाइड कर लो। मान लीजिए यहाँ n1 पार्टिकल्स है, यहाँ कितना है n2 पार्टिकल्स। तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए ये वाली प्लेट है लेफ्ट वाली, ये क्या है, देखिए हाफ डिवाइड है हाफ पोर्शन में। ये अगर L है तो ये कितना हो जाएगा L/2, ये L/2 तो ये भी L/2 हो जाएगा। समझा गया? अब ये जो प्लेट है ये क्या सिमेट्रिक बॉडी है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंट्रोइड पे यानी डायगोनल के इंटरसेक्शन पे, जहां सेंटर ऑफ मास होगा इसका, यानी इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल इसके सेंटर पे होगा। लेट अस सपोज C1, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा C2। क्लियर? इसका सेंटर ऑफ मास पता है, इसका सेंटर ऑफ मास पता है आपको। कैन यू कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लेट? बहुत आसान है। अब इस पूरी की पूरी बॉडी को नहीं देखना हमको सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है, इस इन दो पॉइंट्स पर। बिकॉज मैंने आपको बताया था सेंटर ऑफ मास क्या है, ऐसा स्पेशल पॉइंट where whole mass is supposed to be concentrated. Clear? Now you just try to understand how to locate the center of mass of the plate when such condition are given. कुछ नहीं करना, पहला वाला ऑब्जेक्ट को उसका सेंटर ऑफ मास पता है, दूसरे का पता है, we will use the discrete mass distribution. Clear? सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स पढ़ा था आपने, बताया था मैंने आपको सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। वी विल यूज दैट। इस पूरी की पूरी प्लेट को क्या मान लीजिए, ये जो लेफ्ट वाला प्लेट है इसको आप डिनोट कर रहे हो, देखिए ये जो लेफ्ट वाला प्लेट है इसको आप प्लेट मत मानिए, इसको क्या मान लीजिए, देखिए ये जो प्लेट है ये लेफ्ट वाला प्लेट है, इसको पूरा पूरा प्लेट में मानिए, इसको क्या मान लीजिए, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ इस पूरी पूरी प्लेट को एक सर्टेन पॉइंट से। क्लियर? इसी तरह मैं इस पूरी की पूरी लेफ्ट राइट वाले पोर्शन को इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ एक सिंपल पॉइंट से। तो मैंने आपको बताया था सेंटर ऑफ मास से हम पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट को शो कर सकते हैं। नाउ अब देखिए मैं इसको थोड़ा नीचे ले जाता हूँ, ये थोड़ा आ जाएगा ऐसे, मुझे पता चल गया अगर मुझे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूज करना है सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, तो मुझे इनका लोकेशन पता होना चाहिए एंड इसके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। कुछ नहीं करना, एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, इसको मान लीजिए ओरिजिन, ये लाइन कितना है L। क्लियर? इसका मास नहीं पता वो हम निकाल लेंगे। अगर ये L है, क्लियर, तो ये कितना होगा L/2, ये कितना होगा L/4। ठीक है, तो देखिए इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये क्या है, इट इज प्लेस्ड अलोंग द x एक्सिस। हम ये मान के चलते हैं, मान के चलना आपको दिख रहा है, ये हवा में तो है नहीं है, मैंने क्या मान लिया यहाँ पर, क्या मान लिया, एक ओरिजिन मान लिया, क्योंकि ओरिजिन तो मानना पड़ेगा, यहाँ ओरिजिन मान लिया, ये क्या रखा है, ये x एक्सिस तल रखे हुए हैं। क्यों माना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रेफरेंस लोगे ना। यहाँ से मैंने मान लिया ओरिजिन, यहाँ से इसकी लोकेशन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, क्या होगी L/4, इसकी लोकेशन क्या होगी C2 की। देखिए ये L/4 है और ये L/2 है, ये कितना होगा, ये भी L/4 होगा यहां से यहां तक। अगर ये L/4 हो गया, ये भी L/4 होगा। क्लियर? तो इसका लोकेशन क्या होगा फ्रॉम ओरिजिन 3L/4, 0। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, हमको लोकेशन मिल गया। क्लियर? अब इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मास भी हमको निकालना है। तो देखिए ये जो C1 है, ये जो C1 है सेंटर ऑफ मास, उसका जो मास होगा m1 क्या होगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी ρ1 पता है, लेट अस सपोज वॉल्यूम को k मान लीजिए या फिर लैम्डा मान लीजिए,
क्योंकि दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम, क्योंकि हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, वी आर डिवाइडिंग इन द इक्वल पोर्शन, तो इसका वॉल्यूम जो रहेगा वो इसका वॉल्यूम रहेगा। इसी तरह m2 का क्या रहेगा, √2 इंटू के। अब हमको मास मिल गया, लोकेशन मिल गई, देन वी कैन इजीली कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लेट। नाउ सी x का वैल्यू कैसे निकलेंगे, x क्या निकलेंगे सेंटर ऑफ मास का, m1 x1 m2 x2। अब यहाँ कैपिटल X1 मान लीजिए क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। x1 मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी, x2 क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ लोकेशन ऑफ दैट बॉडी, m1 प्लस। ये उन्हीं बच्चों को समझ में आ रहा होगा लेक्चर। m1 के लिए क्या है, रो1 इंटू के, जिन लोगों ने लेक्चर को प्रॉपर्ली देखा है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, l/4 x1 के, प्लस m2 क्या होगा, रो2 इंटू के, इसकी लोकेशन क्या होगी 3l/4 डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास क्या होगा m1 के लिए रो1 के प्लस रो2 के। तो यहां से देखिए के से के कैंसिल हो गए पूरे में से, तो क्या आएगा आंसर, रो1, और देखिए और कुछ कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा, मास इज इक्वल टू, ठीक है, कैंसिल हो गया। अब यहां से क्या आएगा, रो1 l/4 एलसीएम नीचे ले लेंगे तो क्या आएगा, रो1 प्लस 3 रो2 डिवाइड बाई रो1 प्लस रो2 मल्टीप्लाई क्या आएगा, l/4 कॉमन ले लीजिए, l/4 ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, कहीं कोई की दिक्कत किसी को बताइए। Now move to the another problem. Write down another problem. A ball of mass m small m moving with a velocity v. Write down. A ball of mass small m moving with a velocity v along x-axis, moving with a velocity v along the x-axis. क्लियर, लिखा आपने, full stop, strikes another block, strikes another ball of mass 2m kept at rest. Full stop. The first ball comes to rest. The first ball comes to rest after the collision full stop. The first ball comes to rest after collision and the other breaks into two equal pieces. Full stop. Write down. One of the pieces
one of the pieces starts moving along y-axis at a speed v1 to stop. What will be the velocity of other piece? What will be the velocity of other piece? Clear? So please write down, and आपको फिगर नहीं दिया होगा लेकिन आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा. क्लियर? क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, पढ़िए क्वेश्चन को पढ़िए पहले. A block of mass small m moving with a velocity v along the x-axis strikes another ball of mass 2m. तो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे फिगर को, बहुत आसान है. एक बॉल है, मान लीजिए इसका मास m है और ये एक और बॉल से टकराती है, इसका मास 2m है और ये v वेलोसिटी से मूव करती है along x एक्सिस. ये हमारा क्या है? x एक्सिस. क्लियर? strikes another ball of mass 2m kept at rest. इसकी वेलोसिटी क्या है? 0. The first ball comes to rest after collision. यानी फर्स्ट बॉल हमारी ये है, आफ्टर कोलिजन ये क्या होती है? इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0. क्लियर? एंड द अदर बॉल ब्रेक्स इनटू टू इक्वल पीसेस. दो पीसेस में ये ब्रेक होती है सेकंड वाली बॉल. वन ऑफ द पीस स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द वाई एक्सिस. एक पीस कहां जाता है? वाई एक्सिस के अलोंग मूव करता है. क्लियर? ये कह रहा है क्वेश्चन, मतलब ऐसे अलोंग वाई एक्सिस एंड एट अ स्पीड ऑफ v1 की स्पीड से जाता है. देन पूछ रहा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट अ स्पीड. अगला जो अदर पीस है, मतलब दूसरा जो पीस है, वो किस वेलोसिटी से मूव करेगा. तो देखिए बच्चों, हमको नहीं पता वो वेलोसिटी जो हमारा दूसरा फ्रैगमेंट है या फिर दूसरा पीस है वो कहां जाएगा. तो मैंने क्या किया, देखिए मेरे को इतना पता है कि पहला वाला जो पीस है वो ऐसे जाएगा, मुझे नहीं पता दूसरा वाला. सो कोई दिक्कत किसी को बताओ, हम लोगों ने कुछ नया नहीं करा अभी तक. वी अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम along x axis along y axis. Clear? So you can see this block is moving with velocity v. इसकी रेस्ट पे था ये. आफ्टर कोलिजन ये टूटता है टू पार्ट्स में. वन पार्ट इज मूविंग along y axis, another part is moving in making some angle theta. हमें इसी की वेलोसिटी निकालनी है. मैंने बैलेंस लगा दिया x और y के लॉन्ग. क्लियर? नाउ यू कैन सी, जब मैंने यहाँ से दो इक्वेशन मिल गई मेरे को, फर्स्ट और सेकंड, इसको मैंने स्क्वायरिंग और एडिंग किया. then I got the relation v2 is equal to under root v square plus v1 square. I got the tan theta after dividing the equation second by equation first. equation second को equation first से डिवाइड करेंगे, then you got the tan theta is equal to v1 by v. क्लियर? तो आपको वेलोसिटी मिल गई और उसकी डायरेक्शन मिल गई. यहाँ तक क्लियर? किसी कोई डाउट? So due to technical issue I am stopping the lecture today, and in the next lecture we will start few more problems which we didn't we left. One problem is left to study today that I am going to share with you. एक प्रॉब्लम थी जो मेरे को आपसे डिस्कस करनी थी, बट आई विल शेयर विद ग्रुप और आई विल शेयर इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो तब तक आप लोग प्लीज ट्राई टू वॉच द लेक्चर केयरफुली. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू.